Kanan International. I am Biral Bhardwaj from the head office of Kanan International. Let me first brief you about what we do. We are a study consultancy services providing all types of coaching like in IELTS and Duolingo, SAT, GRE, other exams as well, and also of spoken English since last more than 20 years. And we are a study abroad consultancy and doing visa process for various countries like Canada, US, UK, to name a few. So today's session we have kept for all those students or aspirants who are now going to appear for IELTS, academic हो या general हो. So IELTS के बारे में तो जैसे मैं हमेशा आपको ब्रीफ करती हूँ, so you already are aware about it कि IELTS क्या है. Then also just I'm repeating, IELTS is an international English language testing system where they test your English proficiency. This test is taken by Cambridge, a segment of Cambridge, through two bodies. One is IDP, which is Australian based, and one is British Council. तो ये दो bodies IELTS लेते हैं. Basically they test 4 skills. Firstly, listening, reading, writing and speaking. So all these 4 have their own importance in IELTS. और ये सबके स्कोर डिफरेंट आते हैं इंडिविजुअल सेक्शन वाइज, एंड देन यू गेट एन एवरेज स्कोर. सो स्कोर इन ऑल द 4 मॉड्यूल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, राइट. सो राइटिंग आज जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कॉमन मिस्टेक्स और वेरी कॉमन एरर्स विच स्टूडेंट मेक ड्यूरिंग देयर राइटिंग पार्ट. राइटिंग एग्जाम जब आपका होता है IELTS में, तो कैसी कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं. सो मैंने पहले आपको IELTS का इंट्रोडक्शन किया, मैंने बताया कि कौन सी बॉडीज़ इसको लेती है. फाइन. नाउ इट इज़ ऑल्सो टेकन इन 2 मोड्स. वन इज़ पेपर बेस्ड IELTS और द कन्वेंशनल मेथड जो चलती आ रही है पेपर बेस्ड, जिसमें आप पेपर में पेंसिल और पेन से लिखते हैं. एंड नाउ सेकेंड, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अब इंट्रोड्यूस हुआ है CDIELTS, दैट इज़ कंप्यूटर डिलीवर्ड IELTS, which is now gaining fast recommendations even by students, because definitely it's an advancement of technology, plus it is having so many features that it becomes very much student friendly, very much supportive. So students or aspirants are now preferring more of CDIELTS, and we are providing the training and coaching for both paper based as well as computer delivered IELTS. अब IELTS में 2 कैटेगरीज होती है. वन इज IELTS academic. So those students who want to go abroad for study purpose, so they have to appear for IELTS academic. And those students, those people, those aspirant who are seeking job or permanent resident, PR or immigration or any other purpose, so they are opting for IELTS general category. सो इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग फॉर स्टडी पर्पस देन यू हैव टू बी मोर थॉरो. और ये एग्ज़ाम क्यों ली जाती है? बिकॉज स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू अ कंट्री वेयर इंग्लिश इज़ देयर नेटिव लैंग्वेज. सो ऑल द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन will be in English henceforth for you if you reach there. So you should be able to understand that mode of communication. You should be able to speak. You should be able to write. So writing is very important part, very important. If any mistake happens in speaking or listening, or sometimes so you skip out certain words or certain things in reading, then also it's like not that bad. But in writing part, you have to be very much sure about what you are writing. So today's discussion is, today I'm going to talk about the common errors which student usually do in the IELTS. जितना भी चाहे आपने प्रिपेयर किया हो, लेकिन छोटी छोटी गलती हो जाती है और वो कैसे अवॉइड करनी है, सो उसके बारे में हमारा आज का डिस्कशन है. सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राइटिंग टास्क 1 आवर का होता है. ये 1 घंटे का होता है राइटिंग टास्क, और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं. पार्ट 1 इज डिफरेंट फॉर IELTS academic एंड IELTS जनरल. सो IELTS academic में क्या होता है? फर्स्ट पार्ट इज रिपोर्ट राइटिंग.
मोस्टली यू विल बी अवेयर ऑफ, बट स्टिल मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बार वापस आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ कि IELTS राइटिंग पार्ट 1 में टास्क 1 it is divided into two tasks, task 1 and task 2. So task 1 in academic is report writing and for general it is letter writing. So सबसे पहले हम टास्क 1 लेते हैं which is report writing of academics. So अब इसका क्या होता है, there is certain minutes, certain time period आपको देते हैं 20 minutes approximately. That is suggested time period. And it is also limitized by words. So you have to write at least 150 words in 20 minutes. So students, कभी आपने सोचा है कि क्यों टाइम बाउंड किया गया है या क्यों इतनी लिमिटेशन है as with regards to the word count is concerned? Why it's given so much importance? Because students, वहाँ के जो नेटिव पीपल है वो इस टास्क को करने में अप्रॉक्सीमेटली उतना टाइम और उतने वर्ड काउंट लेते हैं. That's why. So that is the suggested. Otherwise it entirely depends upon you, how much time you spend or how much you write. Fine. So this is one thing. See, first of all, common errors जानने से पहले ये समझना बहुत ही ज़रूरी है IELTS राइटिंग के बारे में. ठीक है, बहुत, क्योंकि अगर आप ये अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप जो एरर्स करते जा रहे हो तो वो कंटिन्यू होगी आपकी वो एरर्स. इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या है, समझना, टास्क को समझना. तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप टास्क अच्छे से अंडरस्टैंड करो. ये पार्ट होता है जब आप प्रिपरेशन करते हो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द IELTS और व्हेन यू गिव द प्रैक्टिस टेस्ट. ठीक है. सो अब आते हैं हम जनरल टास्क 1 पे. तो जनरल का टास्क 1 क्या होता है? लेटर राइटिंग. सो लेटर राइटिंग होता है, उसमें भी 3 आ सकते हैं, एनी 3. आइदर यू गेट फॉर्मल लेटर, either you get informal letter, either you get semi formal. So whatever is given, so that you have to present. Now let us talk about task 2. So task 2 is common for academic as well as general IELTS. Fine. So what comes in this task? तो इसमें ऐसे आता है, मोस्टली सबको पता ही होगा, सबने स्कूल में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में ऐसे लिखे होंगे. But students, still I would like to clear the fact that this essay is very different from your school and college essay or any institute level essay, because here topics are such that you have to, आपको अपना opinion पूछेंगे या आपको डिफरेंस पूछेंगे कि इसके एडवांटेजेस है कि इसके डिसएडवांटेजेस है, या तो आपको डिस्कशन करना होगा. Now there is also a time limit for this. Suggested time limit है approximately 40 minutes और इसकी word limit भी है minimum 20 to 50 words you have to write. Fine. तो अब आप देखोगे कि task 1 में क्या था? It was 20 minutes and 150 words, and here you are having 40, double time and 250 word limit. तो why? आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि ये क्यों है? So if that question comes to your mind, then the answer I will give you is that because task 2 has more importance, essay has more significance. Fine, because task 1 is just a report writing, just you have to, all the information is given, you have to just summarize it. So this is the reason. So now, before common mistake, I would also like to highlight the band descriptors. You all are aware, if you are associated with IELTS preparation or if you are planning for that, definitely आपके IELTS को जज करने के क्राइटेरिया सेट हैं ऑलरेडी. एंड योर एडवांटेज इज दैट, आपके लिए एडवांटेज है कि यू नो दीज क्राइटेरियाज. सो व्हाट आर क्राइटेरियाज? क्राइटेरियाज आर पैरामीटर्स ऑन विच you will be judged, your writing part will be judged. So writing part के 4 band descriptors हैं. So as you must be aware, what is the first is for task 1 it is task achievement and for task 2 it is task respond. तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टास्क अचीवमेंट फॉर राइटिंग टास्क 1 is because you are already given a piece of information and you have to summarize it, you have to state it, right? And task 2 में क्या है? essay is given wherein some factual things are given and you have to give your opinion.
सो टास्क 2 में क्या है, योर रिस्पॉन्स, टास्क रिस्पॉन्स इज अ रूब्रिक क्राइटेरिया फॉर जजमेंट, इज अ बैंड डिस्क्रिप्टर. फाइन. देन सेकेंड क्या है, कोहरेंस एंड कोहेजन. So these two are separate. So what is coherent? Coherent is the flow of your paragraph or the flow of your write up, the summary of your write up. जैसे step wise आप जा रहे हो कि नहीं, इस तरह से paragraph आप कहाँ form कर रहे हो. So वो है. And what is cohesive? Because your ideas should be one by one, it should make a like एक ascending order आपका होना चाहिए. फाइन. जैसे आप स्टार्ट करते हो और उसके बाद आप बीच में तक मिडिल बॉडी उसका कैसा करते हो, हाउ यू स्ट्रक्चर योर राइटिंग. सो दैट इज द फ्लो इज कोहेजन. सो दिस इज देयर. एंड देन द थर्ड बैंड डिस्क्रिप्टर इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. सो व्हाट इज दिस? सो इसमें आपको राइटिंग टास्क 2 में खास करके बहुत ध्यान रखना है कि आप कैसा ग्रामर यूज करते हो, हाउ यू आर डिस्क्राइबिंग. Even it is important in task 1 where you put your commas, where you put your articles, where you put your prepositions. So these are very important points. ठीक है. Even tenses आता है. Suppose ऐसे पार्ट 2 है जो, तो अगर आप टेंस लिखते हैं so सब कुछ एक ही टेंस में आना चाहिए. ऐसा नहीं कि you are into a past tense and suddenly you come into the future tense. So it should not go like that. It should go with the entire, it should have uniformity with regards to tense is concerns. तो this is the band descriptor. तो जब आप लिखते हो ना तो आपको ये सारे band descriptor वो ध्यान में रखने हैं. These band descriptor should be at the back of your mind when you are writing task 1 as well as task 2. Then what is the last band descriptor? It is vocabulary. So vocabulary means lexical resource. Lexical resource एक band descriptor है. So that means vocabulary. तो आपकी vocabulary आप कैसे comprehensive words use करते हो, आप synonyms कैसे use करते हो, आप antonyms अगर वो कैसे use करते हो, आप किस तरह की आपकी range of vocabulary है. सो ये जो सारे बैंड डिस्क्रिप्टर्स है वो आपको बहुत ध्यान में रखने हैं बिकॉज दिस आर योर असेसमेंट पॉइंट्स. सो ये मैंने आपको बता दिए. नाउ लेट अस कम टू द कॉमन एरर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सो लेट अस टेक ग्रामर. सो व्हाई ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ बैंड डिस्क्रिप्टर इन इटसेल्फ. वो आप एक जजमेंट का क्राइटेरिया ही है. प्लस द थिंग इज दैट अगर आपका ग्रामर ठीक नहीं आप लिखोगे अच्छे से, यूज ऑफ आर्टिकल्स कह लो, ए एंड द, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर यू कीप योर द, वेयर यू कीप योर ए एंड एन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम. बिकॉज अदरवाइज आपका जो पैराग्राफ है वो राइटिंग पार्ट 1 है या 2 है, उसका पूरा मीनिंग ही डाइल्यूट हो जाता है. That is why articles and all the grammar is important. Where you put your commas, where you put your full stop, this all is very important. सारे जो grammar है जैसे verbs हैं तो वो आप कहाँ रखते हो, prepositions है वो आप किस तरह से use करते हो, 2 सेंटेंस के बीच में आप किस तरह से जोड़ते हो. So this all is very important for writing. So एक grammar का ये हो गया that you should be very very thorough enough related to all the grammar topics. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या है, अगर मैं रिपोर्ट राइटिंग की बात करूँ तो वॉट एवर इज आस्क्ड यू हैव टू समराइज इट इन अ प्रॉपर मैनर. एवरीथिंग शुड बी कवर्ड. ये नहीं है कि यू हैव टू राइट द एंटायर स्टोरी. सपोज 10 years का, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, 10 years का डेटा दिया गया है. देयर विल बी एनी पिक्टोरियल इमेज in the form of either bar graph, either pie chart, either flow chart. कोई भी पिक्टोरियल इमेज आपको दी जाएगी और उसमें से आपको ओपिनियन अपना अपना रिपोर्ट बनाना है, आपको अपना रिपोर्ट रेडी करना है. तो रिपोर्ट क्या होता है? इट इज़ नेवर टू लेंथी, इट इज़ वेरी प्रिसाइज एंड क्रिस्प. 150 मैक्सिमम 170 to 75 वर्ड्स तक आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए. अदरवाइज वो लेंथी होगा तो इट विल नॉट एड टू योर स्कोर एटलीस्ट. सो ये आपको ध्यान रखना है. प्लस जब आप टाइप कर रहे हो रिपोर्ट, आप इवन पेपर बेस में अगर आप लिख रहे हो या कंप्यूटर डिलीवर्ड में आप टाइप कर रहे हो तो स्पेलिंग्स, योर स्पेलिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. स्पेलिंग मिस्टेक्स आर रियली अ बैड साइन फॉर योर स्कोर्स. सो मेक श्योर you don't do silly mistake.
समटाइम्स गवर्नमेंट को एन भूल जाते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, देन रिसीव का सी आई और ई इंटरचेंज कर देते हैं. Even if you are giving, computer delivered IELTS, please make sure you type it properly, because typo errors के it is as good as spelling mistakes. अगर आपकी typo errors होगी तो it will be counted as a spelling mistake. So even THE ध में भी आपकी spelling mistakes हो सकती है, typo errors आपके हो सकते हैं. So make sure your typo errors are eradicated and make sure all your spellings are correct. कंप्यूटर डिलीवर्ड में तो बहुत ईजी है. अगर आपका कोई स्पेलिंग गलत हो गया तो डेफिनेटली यू कैन सिलेक्ट एंड डिलीट एंड पुट द करेक्ट स्पेलिंग, और यू कैन बैकस्पेस योर सेल्फ. सो इस तरह से जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो आपको अवॉइड करनी है. देन वर्ड काउंट, मैंने आपको बताया कि जो वर्ड काउंटिंग है, सो दैट शुड नॉट एक्सीड. मतलब ऐसे नहीं कि 150 आपको दिया गया है तो आपका पैराग्राफ बड़ा होके 200 वर्ड्स चला जाए. सो दैट इज नॉट अ गुड साइन. देन जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, सपोज कि लाइक 10 years का डेटा हैव बीन प्रेजेंटेड टू यू, हैव बीन गिवन टू यू. So if you study the data properly, study the pictorial image properly, and if you feel that 3 years में data बड़ा है, it is ascending, in the ascending order, it has increased. So for those 3 years, you can write only one sentence. ये नहीं कि आपको 3 years के different sentences लिखने हैं, because it will add on to your word count ultimately, and then your report will become too long. So ये चीज़ हमें खास ध्यान रखनी है. फाइन. सो नाउ अब आते हैं टास्क 2 पे, दैट इज ऐसे राइटिंग. सो ऐसे राइटिंग में क्या होता है, ऐसे इज गिवन, सो यू हैव टू बी वेरी मच श्योर दैट इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऐसे. इसमें आप बुलेट्स या पॉइंट्स हाईलाइट करोगे तो दैट इज नॉट अ गुड साइन. सो नंबर्स या बुलेट्स या इस तरह से आप पॉइंट वाइज नहीं जाओगे. ठीक है. देन यू हैव टू फर्स्ट, क्या होता है स्टूडेंट्स कैसी गलती करते हैं, दे ओनली एड्रेस टू अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अगर आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों पूछे हैं कि व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स एंड व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ सर्टन थिंग्स, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव योर आंसर, योर ओपिनियन, देन यू हैव टू कवर ऑल द 3. फाइन. आपको उसकी चीज़ की नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी बताना है, वो चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट है वो भी बताना है, एंड देन यू हैव टू स्टेट योर ओपिनियन. सो यू हैव टू एड्रेस द एंटायर क्वेश्चन. सो ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स जस्ट आंसर द राइट द ऐसे इन ओनली पार्शियल आंसर. आप अपना ओपिनियन लिख के आ जाते हो. नो, नॉट लाइक दैट. If rather than your opinion, something else is also asked, your views on both the situations, then definitely you have to put the views on both the situations. So ये हो गया ऐसे पार्ट का फर्स्ट. में आपको बताया मैंने कि you have to consider the entire question. ठीक है. आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, एंड देन यू हैव टू राइट. देन मैंने आपको बताया कि बुलेट्स एंड हेडिंग्स आर इट्स अ बिग नो, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट एन ऐसे. सो ऐसे में कभी भी बुलेट्स और ऐसे नहीं आते हैं, नंबर्स एंड ऑल. फाइन. सो दैट यू हैव टू अवॉइड. देन समटाइम्स व्हाट हैपन्स, स्टूडेंट्स मिक्स अप द आइडियाज, या वो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. सो यू डोंट हैव टू डू दैट. आपकी जो भी आइडियाज़ है, आपको जो भी दिया गया है ऐसे में, सो वो एक पूरा स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए. फर्स्ट पार्ट शुड बी योर इंट्रोडक्शन. फाइन. देन कम्स द बॉडी ऑफ द ऐसे, and then in the at last you have to conclude, you have to give some conclusion to your essay. So ये पूरा एक रेंज में जाना चाहिए. इट शुड बी अ सिमेट्रिकल फ्लो ऑफ आइडियाज. ऐसा नहीं कि आप कंक्लूजन ही पहले लिख दो, देन यू आर कंफ्यूज, नाउ व्हाट नेक्स्ट शुड आई डू. इस तरह से नहीं. यू हैव टू पुट योर आइडियाज इन अ कोहेसिव मैनर, सो फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन. सो ये है. And with attached to this common error is the next common error, which is paragraphing. So sometimes students don't realize, they go on writing, they don't do paragraphing. So आपका एक idea, आपका introduction खत्म हो गया है, immediately you have to go to another paragraph. दूसरे पैराग्राफ से आपको लिखना शुरू करना है. So paragraph is very very important in essay writing.
सो डू नॉट मिस आउट ऑन द पैराग्राफ्स, बिकॉज पता कैसे चलेगा, अगर सपोज आप ओपिनियन अपना बताते हो देन यू कंक्लूड, सो हाउ द एग्जामिनर विल डिफ्रेंशिएट. सो इस तरह से होता है पैराग्राफिंग का इम्पॉर्टेंस. देन आई वुड लाइक टू एड्रेस अनदर प्रॉब्लम ऑल्सो, कि समटाइम्स यू नो आप मेमोराइज करके जाते हो. सपोज के ऐसे है तो आप फ्रेजेस मेमोराइज कर सकते हो, आप ईडियम्स मेमोराइज करते हो, आप दूसरी भी एसेज भी मेमोराइज करते हैं स्टूडेंट्स यूजुअली. सो डू नॉट एग्जैक्टली राइट द मेमोराइज लैंग्वेज, प्लीज पुट योर ओन वर्ड्स. आपका थॉट प्रोसेस पूछा है एग्जामिनर के लिए, इट्स वेरी वेरी इजी टू कैच द मेमोराइज यू नो रिटन फॉर्म. मेमोराइज चीज़ों को वो अच्छे से कैच कर लेते हैं. दे आर आस्किंग योर ओपिनियन, दे वॉन्ट टू नो वॉट इज इन योर माइंड, हाउ यू पुट इट in the words. So please make sure you use your own words. It should come out of your, you know, brain or out of your vocabulary which you know. बिकॉज ईडियम्स और फ्रेजेस भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे क्या सूट करेगा. ऐसा नहीं है कि आपने एक ईडियम या फ्रेज लर्न कर लिया है तो कहीं भी आपके पैराग्राफ में आप उसको डाल दो. यू हैव टू बी वेरी, यू हैव टू मेक श्योर दैट इफ यू आर पुटिंग एनी फ्रेज और एनी ईडियम, इट शुड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक. Fine, your ideas should be relevant to the topic. So just keep in mind your topic of the essay. So ये था. देन मैं एक आपको एडवाइस भी दूंगी यहाँ पर कि रिपोर्ट राइटिंग जो कि टास्क 1 है, दैट यू आर गिवन 20 minutes, एंड टास्क 2 है जैसे ऐसे राइटिंग, सो यू आर गिवन 40 minutes फॉर दैट. सो आई वुड एडवाइज यू कि जैसे आपका टास्क खत्म होता है टास्क 1, सो जस्ट स्पेयर अबाउट 3 to 4 minutes, मैक्सिमम 5 minutes, एंड प्लीज रीड. आपका रिपोर्ट कैसा होना चाहिए कि आप पूरा अपना जो समरी आपने लिखी है वो पढ़ के अगर आप वही सेम ग्राफ या सेम पिक्टोरियल इमेज बना पाओ, देन इट इज़ योर परफेक्ट रिपोर्ट. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि आप 20 से बेटर है कि आप 17 minutes में अपना ऐसे अपना रिपोर्ट ख़त्म करो, एंड जो 3 minutes है डिवोट दैट टाइम इन यू नो रीडिंग, so that you know that your ideas are flowing smoothly. आपका आपके कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगी या आपका कहीं कॉमा या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया होगा, मिस आउट हो गया होगा, फुल स्टॉप नहीं किया होगा आपने, सो दैट यू विल बी एबल टू रियलाइज इट, यू विल बी एबल टू सेल्फ इवैल्यूएट, एंड देन यू नो यू विल बी एबल टू करेक्ट योर ओन मिस्टेक. सो दिस विल बी वेरी मच फ्रूटफुल, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो द फ्लो कम्स, आइडिया फ्लो हमारे ब्रेन में आता है, एंड देन वी डू मेक दिस मिस्टेक because it is not in our mind, but we do make this kind of silly mistake very frequently, students do. So I would advise you, even in the essay writing, I would advise you कि please end your essay or try ending your essay in the 35 or 36 minutes, so that at least you have 3 to 4 minutes to read your own essay. प्लीज सी टू इट दैट डज योर essay make any sense. जो क्वेश्चन में पूछे हैं, सपोज क्वेश्चन हैज 3
राइट, ये मैंने डिस्कस किया. नाउ लेटर राइटिंग में लेटर राइटिंग इज फॉर आईएलटीएस जनरल. अब लेटर राइटिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स कि समटाइम्स ऐसा लेटर आता है, ऐसी सिचुएशन आती है कि जस्ट इमेजिन यू आर एट द एयरपोर्ट एंड यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम और यू आर समवेयर एल्स. सो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मैं तो एयरपोर्ट में कभी गया ही नहीं हूँ या कभी गई नहीं हूँ, सो हाउ विल आई पुट इट इन द लेटर. So you have to imagine that you cannot change the question, or you cannot give any other answer. So but you have to imagine yourself in exactly that situation जिसका आपको लेटर लिखना है. वो सिचुएशन में आपको अपने आप को इमेजिन करना है और उसके हिसाब से आप किस तरह से आपका रिएक्शन होगा, किस तरह से आप रिस्पॉन्स करोगे वो. फाइन. और सो ये हो गया लेटर राइटिंग का, चाहे वो फॉर्मल हो, सेमी फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो. बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम दैट आई हैव नेवर बीन इन सच अ सिचुएशन, सो इट इज़ वेरी हार्ड. बट नो प्रॉब्लम, यू कैन इमेजिन दैट यू आर इन दैट सिचुएशन एंड वॉट यू वुड डू. सो दोज आइडियाज देन यू कैन पेन डाउन इन द पुट देम इन द वर्ड्स. सो ये हो गया. नाउ राइटिंग टास्क 2 का जो बैंड डिस्क्रिप्टर है दैट इज योर रिस्पॉन्स. फर्स्ट बैंड डिस्क्रिप्टर टास्क रिस्पॉन्स. सो जब हमने टास्क 1 के बैंड डिस्क्रिप्टर देखे तो उसमें क्या था, फर्स्ट बैंड डिस्क्रिप्टर वॉज टास्क अचीवमेंट एंड राइटिंग टास्क 2 का क्या है, टास्क रिस्पॉन्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? So I will tell you what is the difference. Task achievement means already a set of information is given to you in the form of a pictorial image and you have to form an answer. You have to give your you have to achieve that answer. You have to summarize that information in the form of report. So ये आपका task achieve हो गया. You have been able to do it. Fine. That is why it is called task achievement. And writing task 2 में it is task response. The examiner wants to know how you are responding, what your response is. So this is the basic difference. So you have to keep in mind this two difference when you are doing task 1. You have to keep in mind that band descriptor, and when you are doing or appearing for task 2, so this task response you have to keep in mind. जब आप बैंड डिस्क्रिप्टर्स को अपने माइंड में रखते हैं, लेक्सिकल रिसोर्स है, चाहे वो ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी है, चाहे वो कोहरेंस एंड कोहिजन है, सो आपको आपका जो आंसर है ना वो एकदम परफेक्ट फॉर्म होगा. because आपको already you know the criteria. So if you have in mind the parameters, the criterias, then definitely your response or your task achievement would be according to it. सो अकॉर्डिंग टू मी आपको किन किन बातों का ध्यान, सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट क्या है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट इज योर टाइम लिमिट, सेकेंड इज योर वर्ड लिमिट, थर्ड इज द बैंड डिस्क्रिप्टर. ऑल द बैंड डिस्क्रिप्टर्स आर वेरी इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो ये अगर छोटी चीज़ें आप जो ध्यान में रखोगे वाइल अपियरिंग फॉर योर राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2, सो यू विल बी बी एबल टू स्कोर इन अ वेरी बेटर वे. आपका जो आउटकम होगा वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट होगा. So this was about writing task. Now within this week we are going to cover listening, reading, speaking, even grammatical errors, like why do student make, how do student make. हम ये सारे points cover करने वाले हैं हमारे live sessions में. So अगर कोई भी student को या कोई भी parent को, कोई aspirant को कुछ भी confusion हो regarding all these band descriptors or all the tasks, all the modules, so definitely you can leave your numbers also in the comment section, and if you go through the live sessions, then you will be able to understand all these topics in a much better way. So I hope that today's session was useful to all of you. And now I'm about to end the sessions. As I told you that if you have any query, we are open. Our center, our head office is open from 10 to 7. So you can visit us and you can solve all your doubts. So thank you so much.